Hello everyone, good evening. How is everybody? कैसे हो सभी लोग? Am I audible? Okay, Parul, very good. Everyone should be good. Okay, am I audible? Okay, done. So, today in the class, what we will be reading? वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? Should I wait for some seconds for others to join? थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, ठीक है? Just some seconds. So, yes. Many people have not joined actually. I don't know. And I can see some new faces also. Please try to be regular in the class. मेरी एक request है तुम सबसे. Please, please, please. क्योंकि जब तुम लोग क्लास में रेगुलर रहोगे ना, it will be more okay. It will be more beneficial for you actually. Otherwise, it is of no use. क्योंकि देखो कल के क्लास में क्या हुआ. अच्छा कृष्णा, पारुल मीन्स कृष्णा. अच्छा कृष्णा, I remember you. Okay. So my health is a bit down. Let me inform you earlier क्योंकि मेरे साउंड वॉइस की थोड़ी लो हो सकती है. I started getting fever यार, पता नहीं, season is changing and it's not quite coming good on my health. So I will try my best to deliver the best. ठीक है? So gravitation, what we studied in the previous class. So previous class में basically हमने क्या cover किया था? 3 Kepler's law we discussed. So Kepler law is actually very important and there was 3 law to it, right? सबसे पहला law क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना? चलो इसको यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाते हैं और सन कहाँ प्रेजेंट होता है? उस एलिप्स के एक फोकस पे. सो एक फोकस को यहाँ रख दो, ठीक है? सो दिस इज वन फोकस. उन्नति, गुड इवनिंग. यू गॉट अ बिट लेट बट अभी मैं रिविजन कर रही हूँ, ठीक है? एंड सेकेंड फोकस, लेट्स कॉल इट दिस. सो F1 F2. अब आप देखो इसमें नोमेनक्लेचर जो है, क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं याद दिला देती हूँ. सो इफ प्लैनेट इज गोइंग ऑन लाइक दिस एंड आवर सन इज एट द सेंटर. सो सन यहाँ है. सो प्लैनेट सन से सबसे दूर यहाँ होगा. इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? पेरिजी, है ना? एंड सबसे क्लोज यहाँ होगा जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एपजी बुलाते हैं, ठीक है? दिस वाज द नोमेनक्लेचर. Also, one thing I discussed, that was, good evening, Abhay. So another thing we discussed was this thing: if this is a planet, then Pf1 plus Pf2 will be constant. So ये सारे उसके ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड है. द ट्रेजेक्ट्री एलिप्टिकल होगा, उसमें क्या क्या टर्म्स होंगे वो मैं रिवाइज कर रही हूँ. ये है मेजर एक्सिस और इससे परपेंडिकुलर क्या होगा? माइनर एक्सिस में हूँ. Good evening. Okay, what will be the second law? Digambar, good evening. Just give me 1 second, okay? Okay, so there's so many children around actually, and they're making noise. I mean, they're playing. सो सेकेंड लॉ क्या था हमारा? केपलर का सेकेंड लॉ अगर तुम लोग याद करो तो वो क्या था? लॉ ऑफ एरिया, ठीक है? इसका मतलब क्या था कि अगर इलिप्स है, इस इलिप्स है, इसे बना नहीं, दिस इज सन एंड दिस इज प्लैनेट, एनी प्लैनेट. सो इफ इट स्वीप्स some area like this in time delta t, and again in the same time interval, if it covers again another area, let's call it A2 and let's call it A1, then A1 will be equal to A2.
ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। इसमें हमने और क्या क्या पढ़ा था, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दैट इज एरियल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको दूसरे सेंटेंस में हम क्या बोल सकते हैं, हमने लिखा था ये जो कांस्टेंट वैल्यू था एरियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया था, if you remember, L/2m, that is angular momentum by 2 into mass of planet, right? So if this is constant, this is constant, ये तो अपने आप में constant है because this is mass, L will be constant, that is angular momentum. Angular momentum is what, R cross mv. Again I said you, planet's velocity will be how much, will be minimum at perigee and maximum at apogee, है ना, just to make sure कि aerial velocity क्या हो, same हो, है ना. We also did a question out of this. So this is this. Now, what was the third law, if you remember? So, what was third law? Third law was law of period. ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, एज आई सेड यू, हमने कोई डेरिवेशन नहीं किया, वी विल डू इट लेटर. सो टाइम पीरियड का स्क्वायर, व्हाट टाइम पीरियड कहने का मतलब कि सन के अराउंड प्लैनेट का एक रिवोल्यूशन करने का जो टाइम होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ का स्क्वायर. फुल मेजर एक्सिस मतलब ये पूरा लेंथ अगर ए है तो मेजर एक्सिस का हाफ मींस दिस a/2, ठीक है. सो दिस इज दिस over. So these were the all things that we studied. Now what we are going to read today in the class, universal law of gravitation, means हम लोग आगे और बढ़ेंगे कैलकुलेशंस में, थ्योरीज में, लॉज में, ठीक है, उसको कवर करेंगे. डन. सो लेट्स कवर दिस. अब देखो, इससे पहले ना एक चीज को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. यहाँ पे जो पर्सन है वो एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है. क्या हो रहा है, यहाँ से देखो एप्पल गिर रहा है ना. एप्पल पेड़ में, यहाँ एप्पल क्या है, अगर देखो ध्यान से, बहुत ही कॉमन सी बात है, एप्पल पेड़ में है, ये रेस्ट में है ऑलमोस्ट, unless and until wind is not blowing, so our apple is at rest. लेकिन जैसे ही वो टूट जाता है उसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है और वो किधर चला जाता है, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है. ये एप्पल टूटकर ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा. Just an observation. Now, second thing I want to just want you all to think actually. नाइट स्काई में जब हम लोग देखते हैं ऊपर, हमें चांद दिखता है, मून, तो मून भी तो है वहां, स्टेशनरी दिखता है हमें आसमान में, वो नीचे क्यों नहीं गिर जाता, ठीक है. वाई इट डजंट फॉल डाउन? एनीवन हैव एनी आंसर फॉर दिस? प्लैनेट जैसे मून भी तो है ना, तो उसको भी गिर जाना चाहिए, क्योंकि सेब गिर रहा नीचे, ऐसा लग रहा है अर्थ उस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, तभी वो नीचे आ रहा है, टूटने के बाद अर्थ के पास जा रहा है, स्काई की तरफ नहीं जा रहा. तो अगर अर्थ फोर्स लगा रहा है सेब पे, तो मून पे भी लगा रहा होगा, तो मून क्यों नहीं वो तोड़ लेता आसमान से? कितना अच्छा है ना. अगर आसमान से अर्थ अगर चांद को तोड़ पाता, क्या होता, तबाही हो जाती. वैसे बोलने में काफी रोमांटिक लग रहा है, बट बहुत बड़ा डेविस्टेशन आ जाता है ना, कैटास्ट्रोफी हो जाता है. एनीवे, क्यों होता है, चलो. ओके, मीनाक्षी, इफ दैट्स योर नेम, सॉरी इफ आई स्पेल्ड इट रॉन्ग. मून भी लगा रहा है, तो वो तो सेब और अर्थ के साथ भी होगा ना. ये अर्थ ले लो, ये ले लो एप्पल, ठीक है. सो अगर तुम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े होंगे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, तुम बोल रहे हो, यू आर सेइंग कि अर्थ जो है वो एप्पल पे फोर्स लगा रहा है. डन. तो अर्थ, तो एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ से. हाँ, तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा फिर? You are right to say कि moon will exert force on earth will exert a force on moon. So why here density? Okay, yeah, density only, you think?
Will density matter or mass matter? एप्पल भी काफी डेंस होता है if you see. अगर मैं अर्थ की डेंसिटी के बराबर ही एक एप्पल बनाऊं तो ओके, इज दैट द ओनली रीजन और इज दैट रीजन? चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है. सो आप सबने सही बोला कि जो मून है वो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी मून पे फोर्स लगा रहा है, तो एक दूसरे दोनों को एक दूसरे की तरफ जाना चाहिए ना फिर तो. बट इट्स नॉट हैपनिंग. व्हाट इज द रियल थिंग एक्चुअली? चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी. यू जस्ट सी केयरफुली हियर. ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ पे जो एप्पल है ना, एप्पल वो इनिशियली किसमें था? मैंने जब मैं वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने बोला था कि जो एप्पल है वो ट्री में क्या है, रेस्ट में है. ठीक है, यहाँ पे इस एप्पल को देखो, इसकी वेलोसिटी 0 है. ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है. और जैसे ही ये टूटा, क्योंकि जब वो पेड़ पर है ना, जैसे एप्पल का डायग्राम ऐसे बनाओ. मेरी डायग्राम बहुत वीक है यार, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग एंड ऑल दिस थिंग्स. सो जब ये पेड़ पे है, ये रेस्ट में है, तब भी इस पे नीचे फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, लेकिन जो स्टेम उसको पकड़ के रखे हुए वो भी उस पे फोर्स लगा रहा होगा, और ये दोनों फोर्स इक्वल हो रहे होंगे, इसलिए ये रेस्ट में है. जैसे ही ये एप्पल टूटेगा, होगा क्या, ये एफ तो गायब हो गया क्योंकि वो स्टेम से बिछड़ गया, उससे जुदा हो गया, अलग हो गया. अब स्टेम उस पे फोर्स नहीं लगा रहा. डन. तो उस पे सिर्फ फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी. वो किधर लग रहा है? नीचे. तो वो नीचे आ गया. ठीक है, अब आप यहाँ पे मून को देखो. अगर प्रीवियस डायग्राम में मैं बोलूं मून है, मून को भी अर्थ क्या लगा रहा है? एक काम करो, यहाँ पे अर्थ ले लो. ठीक है, सो अर्थ है, अर्थ क्या लगा रहा है मून पे? फोर्स लगा रहा है. डन. देन व्हाई इट इज नॉट कमिंग डाउन? क्योंकि जो ये मून है ना, ये रेस्ट में नहीं है. दिस इज नॉट इन रेस्ट. और रेस्ट में नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? ये जो मून है इसके पास सर्टेन वेलोसिटी है, और इतनी वेलोसिटी है कि वो अर्थ जो उस पे फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को वो इस तरह से यूटिलाइज करेगा कि वो राउंड एंड राउंड किस में जा रहा होगा? सर्कुलर मोशन में. जैसे तुम सोच लो कि अगर अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है एफ, और अगर ये एफ फोर्स is equal to mv square by r, where v is the velocity of moon and r is the orbit in which moon is orbiting earth, then this force F will get utilized in helping moon go round and round around the earth. So because of its velocity that moon has, it won't fall down to earth, it will go in the circle. So यहाँ पे डायग्राम में भी तुम लोग को दिख रहा है, ये जो मून है ना, इसके पास सर्टेन वेलोसिटी है, कुछ ऐसे. ये वेलोसिटी वेक्टर रेड लाइन दिखा रहा है, एंड दिस ब्लू लाइन इज शोइंग यू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अर्थ इज एक्सर्टिंग ऑन इट. ठीक है, so that is why it's not falling down, or it's not going in this direction, it's going round and round in circle, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन से 90 डिग्री है. और सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरत होता है कि वेलोसिटी और फोर्स कैसे लगे? एक दूसरे के 90 डिग्री होनी चाहिए. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो 90 डिग्री नहीं भी हो सकता है. दैट्स अ स्पेशल केस वी हैव ऑलरेडी, यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू इट. इवन इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, नो वरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ठीक है, तो चलो, ये रीजन था. और दूसरी चीज ये कि मैंने पूछा था कि एप्पल जो है वो ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, ग्राउंड एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे एक ही लगा रहे, इक्वल मैग्नीट्यूड का लगा रहे. ठीक है, अर्थ पे फोर्स एप्पल लगाया और एप्पल पे फोर्स अर्थ लगाया, दोनों ही फोर्स इक्वल है. लेकिन जब एक्सेलरेशन निकालोगे ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या होगा? मास ऑफ अर्थ बाय फोर्स एक्टिंग, and mass of earth is, sorry, force by mass is acceleration. My temperature is reaching to mind, I guess. So this is your force acting, and acceleration of earth I'm calculating. So mass of earth is very large, very huge, so this quantity will become negligible, and that is why earth
एप्पल की तरफ मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर सेम एक्सेलरेशन तुम एप्पल के लिए निकालोगे ना, force by mass of apple is very finite, small value, so that will give you a significant value of acceleration, and that is why this apple feels like falling down to the earth. So these are just general observation जिसको हमने explain किया, क्योंकि देखो फिजिक्स में किसी भी चीज को समझने के लिए ना ये सारी अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग should be there in our head, है ना। चलो, सो इन सारे ऑब्जर्वेशन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन हुआ, और उसमें ये कहा गया कि जब दो मासेस होंगे आसपास एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जिसको हम क्या बुलाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। फर्स्ट थिंग, ये जो फोर्स होगा वो हमेशा ही क्या होगा, दिस फोर्स विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी आगे बोलेंगे, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब देखो, देखते हैं कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे होगा। सो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो फोर्स होता है वो दोनों मासेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मासेस के डिस्टेंस के बीच का, ठीक है। एंड दिस सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m1 m2 by r square, and F is equal to g m1 m2 by r square, where g is a constant called universal gravitational constant, and its value is how much, 6.67 into 10 to the power minus 11, and this is unit, right? So can anyone tell me the dimension of g? यूनिट तो लिखा हुआ है, सिंपली डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो। कोई तुम लोग डायमेंशन लिखकर बताओ जी का क्या आ रहा है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन आल्सो लेट मी, अभी तक जो पढ़ाया उससे। Okay, Mahesh. So Mahesh is getting -1 L3 T minus 2. Okay, let's see. This is Newton, that is your force. Force को क्या लिखते हो, mass into acceleration. So this is ml T minus 2, and this is meter square. So meter square is L square, ठीक है, and this is kg, that is mass. So mass का -2, so m -1 L का cube T minus 2, that is true. Okay, thank you. That will be your answer. Okay, Krishna, you missed on one thing, that is n का power, ठीक है, आप चेक कर लो उसको, कुछ मिस्टेक हुए होंगे। देखो, जब भी तुम लोग कोई भी न्यू क्वांटिटी पढ़ रहे हो ना, तो उसका डायमेंशन जरूर निकालो, क्योंकि क्वेश्चंस ना जब भी एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज जी नीट में डायमेंशन पूछा है, बहुत दफा पूछा है, ठीक है। सो ये तुम लोग हर बार, जैसे जी यहाँ पे मुझे एक नया क्वांटिटी मिला है ना, मीनाक्षी, दैट्स ट्रू, थैंक यू। चलो ठीक है, किसी को डाउट भी नहीं है ना। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्यों वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, राइट। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस या दो से ज्यादा मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड सिंस दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी नीड टू राइट इट वेक्टोरियली, ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेक्टर की बात करेंगे, है ना। So let's write it in vector form also. Suppose there are two masses m1 and m2. तुम लोग एक टर्म पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो कोई चाप नहीं, मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
कोई भी चीज का, जैसे यहाँ पे दो मासेस हैं, इनको दो पर्सन की तरह ट्रीट करो, m1 एंड m2। ओरिजिन डिफाइन हो गया। पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सो ये हो गया ओरिजिन। नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1? कैसे निकालोगे? m1 इस पॉइंट पे है, तो ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे, और जो लाइन मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 क्या होगा? ओरिजिन से m2 जहां पे खड़ा है उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एंड दैट लाइन विल गिव यू पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। सो यहाँ देखो r1 is position vector of m1, r2 is position vector of m2. Now how the force will act between these two masses? As I said, gravitational force क्या होता है? attractive force होता है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं m1 पे m2 फोर्स किधर लगा रहा है, तो मैं किस पे फोर्स लगने की बात कर रही हूँ? m1 पे। कौन लगा रहा है? m2। सो m2 m1 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी कि m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि m2 m1 पे किधर फोर्स लगा रहा है? इधर, अपनी तरफ। सिमिलरली m2 पे m1 किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो m1 विल attract m2 towards itself, m2 will attract m1 towards itself, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन भी किधर होगा? towards them, ठीक है। so that we are going to see now. so this उससे भी पहले हमने m1 और m2 का आपस में पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2? ठीक है, मतलब अब ओरिजिन हमने किसको बना दिया? 1 को। सो 1 के रिस्पेक्ट में 2 किधर है? ठीक है, सो दैट इज डिफाइंड एज r12 पोजीशन वेक्टर। r मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो r12 को हम कैसे लिखते हैं? तुम लोग थोड़ा बहुत भी अगर वेक्टर में पढ़े होगे तो r12 को लिखते हैं r1 माइनस r2, ठीक है। दैट इज रिलेटिव थिंग। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हो? v12 कैसे लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, v1 माइनस v2। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, r1 माइनस r2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r1 माइनस r2 करोगे तो किधर मिलेगा? दिस इज r1 और माइनस r2। सो r1 कुछ इधर है, इससे किसको माइनस करना है मुझे? r1 माइनस r2। सो माइनस r2 अगर करोगे तो एक काम करो, माइनस r2 किधर जाएगा? इधर कहीं जाएगा, है ना। देखो r2 इधर है, वेक्टर्स को हम पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक। इसलिए मैंने r1 r2 के टॉप पे रख दिया किसको? r2 को, माइनस r2 को। सो r1 माइनस r2 मीन्स r1 प्लस माइनस r2। अगेन दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि वेक्टर भी थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ में आता जाए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो डोंट टेक बर्डन, जस्ट लुक एट थिंग्स केयरफुली, ओके। सो r1 माइनस r2 किधर होगा? इधर, ठीक है। सो दिस इज r12, दिस इज डायरेक्शन ऑफ r12। हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स? जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मतलब क्या होता है? वेक्टर a के हेड पे, वेक्टर में हेड और टेल होता है ना, सो दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। a प्लस b मीन्स वेक्टर a के हेड पे वेक्टर b का टेल रखेंगे, और a प्लस b क्या होगा? a का टेल b के हेड से जब ज्वाइन होगा तो वी विल गेट a प्लस b। सो दैट सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, दैट इज योर that is here r1 minus r2. So I'm adding r1 plus minus r2. So on the head of r1 I have kept tail of minus r2, and then I'm joining tail of r1 to head of minus r2, and thus we are getting r12. So this is the direction of r12, okay। So this is r12। अब देखो, एक सेकेंड, r12 किसके बराबर है? r1 माइनस r2। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप डिफाइन करोगे, F12 डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। सो F12 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। सो 1 पे फोर्स 2 किधर लगाएगा? अपनी तरफ। सो F12 का डायरेक्शन इधर है,
है ना। सो G m1m2 फोर्स क्या होता है, G इंटू दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r12 है ना। सो r12 का स्क्वायर, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, r12 का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। सो F12 का अगर डायरेक्शन बताना है तो वो r12 के डायरेक्शन से ऑपोजिट है, यानी कि r12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखा और माइनस साइन के साथ। यूनिट वेक्टर मींस अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप यूज करते हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप यूज करते हैं। सिमिलरली r12 के डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे r12 के डायरेक्शन, सो दैट इज r12 कैप। कोई एग्जाम्पल होगा, हाँ होगा ना, अभी क्वेश्चन करेंगे हम। अभी बस देखो, मेरा इसको तुम नहीं भी अभी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन सॉल्विंग में, मैं डायरेक्टली जा सकती थी, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि देखो मैंने तुम्हें वेक्टर पढ़ाया नहीं, मैंने तुम्हें रिलेटिव थिंग्स भी नहीं पढ़ाया, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा थोड़ा चीजें ना थोड़ी थोड़ी कर करके एक्सप्लेन करती जाऊं, ताकि तुम लोग अगर सपोज कर लो 2 महीने बाद फिर कुछ रिलेटिव टर्म सुन रहे हो तो तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगना चाहिए, तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो कभी सुना ही नहीं था, वेक्टर ऐड कैसे करते हैं। तो डोंट रश आउट, आई विल टेल यू, just keep patience, okay. So again we will do lots of question on this क्योंकि this is very important, okay. So F12 is this direction, F12 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली F12 को तो लिख दिया, F21 कैसे लिखेंगे, F21 क्या होगा, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। सो वो M1 अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि R12 के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो F12 विल बी इक्वल टू F21 बट इन डायरेक्शन दे विल बी ऑपोजिट, है ना, क्योंकि जितना M1 फोर्स M2 पे लगाएगा उतना ही M2 M1 पे लगाएगा, G M1 M2 बाय R12 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। न्यूटन्स लॉज में भी पढ़े हो, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, द सेम थिंग, ठीक है। तो बहुत जल्दी में थे तुम लोग, अब मैं क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ रही हूँ। एक काम करते हैं, why I took this blank page actually, so I took it to explain you certain things। जैसे देखो, सपोज कर लो मैंने दिया तुम लोगों को कि यहाँ पे एक फोर्स है M, यहाँ पे एक फोर्स है 2m और यहाँ पे फोर्स है 2m, डन है। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये रहा, सपोज कर लो कि कैलकुलेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन m, कैसे निकालो, ठीक है। ये मैं करके दिखाती हूँ। तुम्हें क्वेश्चन में पूछा कि m पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा। अब मैंने इस डिस्टेंस को a ले लिया, इस डिस्टेंस को भी मैंने कन्वीनियंस के लिए क्या ले लिया, a ही लिया, ठीक है। m पे फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन भी हमें डील करनी पड़ेगी ना। सो m पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, m के सराउंडिंग में कितने मास है, 2m है, यहाँ पे भी चलो इसको 3m कर देती हूँ, ठीक है। सो 3m है, 2m है, तो m पे फोर्स कौन लगाएगा, 2m लगाएगा, 3m लगाएगा। अब देखो m पे फोर्स 2m किस डायरेक्शन में लगाएगा, सबसे पहले तो दोनों मासेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग ही फोर्स लगेगा, है ना। वी आर गोइंग टू डिफाइन फोर्स एक्टिंग ऑन m बिकॉज ऑफ 2m। सो 2m m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इफ m, इस फोर्स को सपोज मैं F1 से इंडिकेट करती हूँ, ठीक है। सो F1 विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, डन। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन m बिकॉज ऑफ 3m, again direction of force will be along the line joining m and 3m, again 3m will attract m, so force direction will be in which direction, towards 3m, that is in this direction। so force acting on m because of 3m, इसको मैं सपोज कर लो लिखती हूँ F2, so F2 will be this। now what is the net force acting on m, so this is basically net force acting on m is how much,
is vector sum of f1 plus f2. Vector sum of f1 plus f2. Now if you're going to do this, what we need to do, we need to just, अब यहाँ पे दोनों वेक्टर को आप लिख लो, f1 लिख लो, f2 लिख लो, इनके बीच का एंगल सपोज कर लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज 60 डिग्री, so this is 60 degree. Now we have to add two vectors f1 and f2 at an angle 60 degree. ठीक है, f1 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड कितना होगा, gm into 2m by a square. Similarly, what will be the value of f2 if you write, what will be the value of f2, gm into 3m by a square. ठीक है, so magnitude we are having, if we have to calculate their values, f net का मॉड्यूलस, फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, क्या लिखते हैं, वन वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 into f1 f2 into cos theta, where theta is angle between these two vectors. ठीक है, तो अब आप वैल्यूज पुट करोगे, थीटा का वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. सो यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है कि नेट फोर्स तुम्हें निकालने के लिए देगा. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू, एनी डाउट एनीवन इन दिस? किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ओके, कुलदीप, थैंक यू. ओके, कृष्णा, you people are really very kind and very good. I hope you continue this kindness and this beauty. चलो, let's do a question. तो अच्छा, क्लियर नहीं है मीनाक्षी, क्या डाउट है बोलो. Actually, I have fever. That is why I'm this much panting and sighing. Don't take it otherwise. Net force. अच्छा, net force समझ में आया. Okay. So net force हम कैसे निकालते हैं ना? यहाँ पे देखो, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे. तुमने डायरेक्शन समझ लिया, m मास पे दो फोर्स लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस टू सराउंडिंग मासेस. ठीक है, f1 का डायरेक्शन भी तुमने निकाल लिया, f2 का डायरेक्शन भी निकाल लिया, इन दोनों के बीच का एंगल भी तुम्हें पता है. डन. सो अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, अब ये क्वेश्चन हो गया कि दो वेक्टर है हमारे पास. ठीक है, देखो तुम मीनाक्षी एक चीज ध्यान से समझो कि हमने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है. ठीक है, वेक्टर ए का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसके मैग्नीट्यूड को ए मान लो. मॉड ये लाइन का मतलब समझते हो ना तुम लोग. अगर एक वेक्टर को एक ऐसे लाइन में बांध देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ठीक है, यस मीनाक्षी, सो दैट इज मैग्नीट्यूड. तो ए का मैग्नीट्यूड ए मान लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी मान लो. अब तुमसे पूछता है कि ए प्लस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो कैसे बताओगे. इसका फॉर्मूला है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू दोनों के बीच का जो एंगल है कॉस ऑफ दैट, कॉस थीटा. सो दिस इज फॉर्मूला. दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a square plus b square plus 2ab cos theta root under, where a is magnitude of one vector, b is magnitude of another, and theta is angle between a and b. राइट. सो इस सो प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी f1 और f2 दो वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है. f1 का मैग्नीट्यूड वी कैन सी हियर, इट इज दिस. f2 का मैग्नीट्यूड इज दिस. सो f नेट मतलब f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. So this will be equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. So this will be your answer. मीनाक्षी, am I able to clear it? नहीं तो मुझे एक चीज बताओ, कौन से पर्टिकुलर थिंग में प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, अच्छा हो गया. That is very graceful. Thank you. So we have a question. एंड क्वेश्चन इज ऑफ द सेम थिंग. पहले क्वेश्चन नंबर ए करना तुम लोग. ठीक है, सो ए को पहले ध्यान से देखो.
So there are 3 equal masses. मास का वैल्यू कितना है 3 kg. Each are fixed at the vertices of an equilateral triangle. हमारे पास एक equilateral triangle है, ठीक है. 3 kg मास तीनों ही वर्टेक्स पे रखा हुआ है. What is force acting on mass in kg placed at the centroid? Centroid means center of that triangle, right? So सबसे पहले मुझे ये बताओ कितना होगा आंसर, ठीक है. I'm here only, don't worry. I'm just switching off the camera, but I'm here only, okay? Take your time, do it. Krishna, you have given me answer, but you need to rethink, okay? Krishna, deal with it once more, okay? Just be more careful with direction of forces that you are taking, and also with magnitudes you're calculating. ठीक. So देखो हम लोग अभी ना तुम लोगों को ये बिल्कुल मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बहुत मुश्किल में है हम, नहीं. तुम लोग अटेंटिव रहोगे, धीरे धीरे हम लोग चीजें सीखते जाएंगे और धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है. So we have to make things easier, and for that we have to wait and watch and do. तो वही काम अभी तुम लोग कर रहे हो. So सभी लोग ट्राई करो, गलत सही जो आ रहा है लेट मी नो आंसर ऑल्सो. सो कृष्णा तुम फिर से ट्राई करो, ठीक है. Acha, you are Parul, but some moment before you said you are Krishna. I got you wrong. Who told me that? Parul Krishna, you texted me only. Okay, she's your sister. Okay. Acha, done. So you both are in the same class? Acha, you are at home, so you have just logged in from her account, I guess. That's the case, right? No issues, no need to change or something. Okay, तुमने change किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. To the long you people are here with whatever name, it doesn't matter. बस ये है कि नाम सही सही होता है तो वो आगे के क्लासेस में कंटिन्यू रहेगा, है ना. तो कुछ लोगों का नाम हमेशा जुबान पे होगा, तो दैट विल बी गुड फॉर यू आल्सो. दैट इज व्हाई. अदरवाइज नो इश्यूज. चलो, एनीवन विथ आंसर? किसी को कोई आंसर मिला हो? Okay, Unnati. Everyone is getting it wrong. मीनाक्षी. नहीं 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 बाबा रे, ऐसे नहीं. देखो तुमने ना F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों ही वेक्टर को ऐसे यूज किया. फॉर्मूला जो मैंने बताया ना जस्ट नाउ, दैट इज फॉर 2 वेक्टर्स एडिशन, ठीक है. सो तुमने क्या किया यहाँ पे, जस्ट लेट मी करेक्ट यू क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. देखो हम कहाँ गलत करते हैं.
इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, गलती करोगे वो बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि वहां से हम सीखते हैं। तो तुमने क्या किया ना, 3 जो है वो एम पे फोर्स इधर लगाया होगा अपनी तरफ, अनदर 3 अपनी तरफ, अनदर 3 अपनी तरफ। तो तुमने इसको F1 लिया, इसको F2 लिया, इसको F3 लिया, तुमने तीनों ही वेक्टर को ऐड कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये तीनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या लोगे? दैट्स कंफ्यूजिंग ना। दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जैसे F1 F2 को ऐड करूं तो मुझे पता है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ओवर, सो डोंट ऐड लाइक दैट। डन, तो ये याद रखना। नाउ देखो, मैं वेक्टर, तुम लोग एक्चुअली तुम लोग वेक्टर किए नहीं हो क्वेश्चंस, अगर किए होते ना तो अभी ये क्वेश्चन करने में तुम लोग को आधे सेकंड लगते, आई एम टेलिंग यू। सो लेट मी फर्स्ट मेक इट वन थिंग क्लियर, क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए। सपोज कर लो एक वेक्टर है, F1 इधर है और F2 इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री, दिख रहा है ना। सो एक चीज और मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि F1 का मॉड्यूलस दैट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू FD का, F2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, सो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर ऐसा केस तुम्हें दिखता है तो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, यानी कि F1 प्लस F2 जो होगा वेक्टर, ये किधर से पास करेगा? ये एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। ओवर, चलो। तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे ना, दिस इज सेंट्रोइड। सबसे पहले तो हमें ज्योमेट्री पता होना चाहिए। Centroid is what? Geometrical center of triangle, right? So if this is centroid, then पहले मैं फोर्स को दिखाती हूँ। So this 3 mass will apply force in this direction. Let's call it F1. This 3m mass will apply force in this direction. Let's call it F2. And this 3 mass will apply force on m in this direction. क्योंकि all these masses will attract a small mass m towards each other, and that is why this direction. Over. Now what is this angle? Huh? This is centroid, right? And you all must have studied in class 9th or 10th कि if this is centroid, this angle, and this angle will be equal. All these 3 angles are equal. So sum of all these 3 angles, 3 theta समझ लो, ये theta ले लो, तो 3 theta 360 होगा, theta कितना होगा? 120। और ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है? 120 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? F1 का वैल्यू क्या होगा? G इंटू M इंटू 3M, सॉरी दिस इज 3M, दिस इज 3M, दिस इज 3M बाई दिस डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि अगेन दिस इज सेंट्रोइड, सो दिस विल बी क्वाइट सेम, राइट? सो इसको आप A मान लो, इसको A मान लो, इसको A मान लो फॉर अ टाइम बीइंग। कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग, अभी मैं कर नहीं रही। सो दिस स्क्वायर, अब देखो F2 का भी वैल्यू क्या होगा? Gm इंटू 3m बाई ए स्क्वायर। F3 भी सेम होगा, यानी कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि F1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू F2 का मॉड्यूलस इक्वल टू F3 का मॉड्यूलस। ठीक है, चलो एक चीज और मैं तुम लोगों को बताती हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जब दो वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर, जब दो इक्वल वेक्टर F1 ले लो, F2 ले लो, जब दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे होता है तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? एंगल बाइसेक्टर से, 60 डिग्री से, F1 प्लस F2। बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो भी F1 F2 के बराबर होगा। कैसे? सपोज कर लो कि F1 का मैग्नीट्यूड मैंने A ले लिया, ठीक है, F2 का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया? A, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो A लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालो, F1 प्लस F2, जस्ट पुट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है? F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120 कितना होता है? एनीवन? कॉस 120 कितना होगा? जल्दी से बताओ।
यस महेश, दैट इज वेरी गुड। माइनस हाफ, ठीक है। यस पारुल, माइनस हाफ होगा, ठीक है। सो दिस टू टू कट हो गया, 2a² माइनस a² कितना आया, a² का रूट ओवर यानी कि a, यानी कि तुम ध्यान से देखो, f1 का मैग्नीट्यूड a है, f2 का मैग्नीट्यूड a है, दोनों के बीच का एंगल 120 है, देन f1 प्लस f2 भी क्या है, a है। कहने का मतलब कि अगर two equal vectors are at 120 degree, their resultant will cross from 60 degree and also their resultant will have same value as the individual vectors. That is f1 का magnitude f2 का जो है वही f1 plus f2 का होगा। क्लियर है? तो ये मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि यहाँ पे देखो ये f1 ये f2 120 डिग्री पे है, they are equal, so their resultant will pass through 60 degree and their डायरेक्शन तो 60 डिग्री होगा, मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, f1 या f2 के बराबर होगा। डन। अब देखो f1 और f2 का रिजल्टेंट तो ये मिला, एक काम करती हूँ इसको दूसरे स्लाइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आया, देखो फोर्स कैसे कैसे आया, ये था f1, अभी कोई आंसर मुझे बता सकता है इतना एक्सप्लेनेशन के बाद, ये था तुम्हारा f3, ठीक है। f नेट तुम क्या लिखोगे, वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस वेक्टर f3, यही करोगे ना। तो सबसे पहले एक काम करो, f1 प्लस f2 को ऐड कर लो, पहले दो वेक्टर को ऐड करो। डन। सो f1 प्लस f2 को ऐड करूंगी, किधर जाएगा, 160 से इधर जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, f1 के मैग्नीट्यूड या f2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ए जो भी वैल्यू मानो वो होगा। अब ऐड किसको करना है, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का जो एडिशन है उसको f3 से ऐड करना है, यानी कि f3 को ऐड करोगे इससे। अब देखो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट दिख रहा है तुम लोगों को, क्योंकि f3 का मैग्नीट्यूड f1 के बराबर है, f1 f2 का मैग्नीट्यूड भी f1 के बराबर है, और दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो f1 प्लस f2 प्लस f3 किसके बराबर होगा, ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। डन। कहने का मतलब फाइनल कंक्लूजन में ये बताऊंगी कि अगर तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर 120 डिग्री पे अगर दिख रहे हैं तुम्हें, 120 डिग्री पे तीन इक्वल वेक्टर अगर है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, नल वेक्टर यू विल गेट। ओके, सो याद क्या क्या रखोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो तीन वेक्टर इक्वल है, 120 डिग्री पे है, आंख बंद करके उसका रिजल्टेंट क्या लिखोगे, 0 डिग्री। दो इक्वल वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, जस्ट क्लोज योर आइज एंड से इट विल पास थ्रू इट्स एंगल बाइसेक्टर। मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं आएगा, इक्वल तभी आएगा जब एंगल 120 होगा, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू, बट इट विल पास बाइसेक्टिंग द वेक्टर। ओके, एनीवन एनी डाउट इन दिस, है तो बता दो। नो डाउट पारुल और सभी लोग, अभय, पी, जोशी, उन्नति, मीनाक्षी, या मीनाक्षी यू हैव एनी डाउट, अभय, कौन कौन है और, महेश, दिगंबर, कुछ लोग बिल्कुल शांत हैं, वो लोग आंसर करो प्लीज। देखो नहीं समझ में आया है, यू कैन बी वेरी फ्रैंक विथ मी। ओके ओके महेश, मीनाक्षी, नो डाउट, चलो ठीक है। सो डू द सेकेंड पोर्शन। ओके, सेकेंड पोर्शन का आप मुझे आंसर बताओ। सॉरी, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए रखा था एक्चुअली, सो एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन बी बताओ आंसर क्या होगा। अब देखो फर्स्ट कर चुके हो तो बी बहुत इजी होना चाहिए तुम लोग के लिए, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। कौन से वर्टेक्स पे डबल किया गया है, वर्टेक्स ए पे, ठीक है, मैंने डायग्राम भी दे दिया।
ठीक है, मास अभी भी सेंटर पे है जिसपे तुम्हें फोर्स पूछ रहा है। डन। ठीक है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली डिफरेंस इज कि ओके पारुल, व्हाट्स योर आंसर? नंबर 6 आई डिडंट अंडरस्टैंड। उससे पहले मुझे किसने आंसर दिया? ओके, पारुल itself. आर यू श्योर 2gm² आ रहा है? AG BG CG 1 दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज गिवन एंड दैट इज 1। उन्नति, नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू पीपल आर डूइंग। क्यों गलत आ रहा है यार? आना नहीं चाहिए, बट क्या निकालना है? ओनली थिंग इज here mass is getting doubled, so this is 2 into 3m, right? So this is 6m. On this small mass m, you have to calculate the force. Because of mass at B, force will act in this direction. Because of mass at C, force will act in this direction. And value of these forces will be how much? G into m into 3m ka 3m by 1 ka square. Also, this force also will be same. So these two forces are equal. And angle between them is 120 degrees. So I'm not going to write the formula and define things and calculate. क्योंकि अभी अभी हमने देखा दो इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री पे है, रिजल्टेंट मिडिल से पास करेगा ही करेगा, साथ साथ रिजल्टेंट का वैल्यू कोई भी एक वेक्टर के वैल्यू के बराबर होगा। सो दैट इज, इसका रिजल्टेंट भी कितना होगा? G इंटू 3m का स्क्वायर। डन। And force at A will apply force on a mass at A will apply force at a small mass m in this direction, and this force will be G into m into 6m by 1 ka square, right? So we have to add these two vectors now, है ना? Force acting on m will be sum of what? Force getting acted by B plus force getting acted by C plus force getting acted by A. यही करना है ना। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें कितना मिला? G इंटू 3m का स्क्वायर। ये कितना है? G इंटू 6m का स्क्वायर। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है बट इक्वल नहीं है दोनों। सो दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, क्या मिलेगा? 6gm का स्क्वायर माइनस 3gm का स्क्वायर। सो आंसर विल बी 3gm का स्क्वायर एंड डायरेक्शन विल बी व्हाट? इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि this force is greater than combination of FB plus FC. So net force will be in the direction of FA. Clear है? Anyone any doubt in this? किसी को कोई डाउट है? जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनको समझ में आया होगा कि कहाँ गलती की आप लोगों ने, और जिन लोगों ने नहीं किया हो तो गलती की है। सबसे बड़ी गलती उन लोगों ने की जिन्होंने सॉल्व भी नहीं किया। कोई डाउट नहीं है उन्नति? चलो अदर्स। किसी को डाउट नहीं? Yes, ma'am, done. Okay. Done, then we are also done because it has been already 5:55. That is 5:55. Done, and that is the time when our class ends. So I wish
each one of you very, very happy Diwali. And you all have a very safe Diwali. Don't use crackers, please, because it weighs really heavy on our nature, beautiful nature. If you want to protect it, if you want to keep it as beautiful as it is, then please don't use crackers. Yeah, thank you, Unnati. I'm just also wishing to get well very soon because since last 1 month I'm just struggling with these thingies. So yeah, बट सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करना, फैमिली के साथ हो, ढेर सारे मजे करना और अच्छे अच्छे खाना खाना और घर पे लोगों का हाथ भी बटाना क्योंकि फेस्टिवल में काम बहुत होते हैं. सो ये लड़कों के लिए भी अप्लाई होता है. बी इट बॉयज और गर्ल्स, हेल्प योर मदर्स एंड और योर पेरेंट्स, आई मस्ट से. और सेलिब्रेट करो, मजे करो अपने भाई बहन, मम्मी पापा सबके साथ. चिल एवरीवन, मजे करो, ठीक है. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. Keep enjoying. Okay. Happy Diwali. Bye bye. Take care. Chalo. Thank you so much, everyone, for your wishes. It really means a lot to me. है ना? क्योंकि wishes are always powerful. Prayer has lots of power. So तुम लोग भी मेरे लिए अच्छा अच्छा प्रे कर लेना, please. Okay. Bye bye. Take care.